inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. First question is, discuss convergence or divergence of the given series is 1 plus 1 by 2, 1 by 4 plus 1 by 8 up to so on, infinite series. Now I can write this one as summation un, this is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 up to so on. Now this series can be rewritten as 1 plus 1 by 2 plus 4, here is 4, that means I can write 2 square, 2 cube up to 7. Now S1 is U1, that means we get 1. S2 is equal to sum of two terms, that means U1 U2, which is 1 plus 1 by 2. S3, this is equal to U1 plus U2 plus U3, that means we get 1 plus 1 by 2, 2 square. Similarly, we can write Sn, this is equal to U1 plus U2 up to so on, Un, that means U1 is 1, this is 1 by 2, second term, third term is 2 square, and U1 going to be 2 raised to power n minus 1, because first term is in the series is 1. So if we write n terms, then in nth term we are going to get 2 raised to power n minus 1. Clearly you can see this is a GP series. Here common ratio is half and first term is 1, and sum of nth term formula is a 1 minus r raised to power n 1 minus r. Now we are going to substitute the values. A is 1 minus 1 by 2 raised to power n 1 minus 1 by 2. That means by solving this we get half, and this will be turned out to be 2 times 1 minus 2 raised to power n. Now we have written this infinite series and partial sum defined by the sequence Sn both behave alike. That means if this one is convergent, this one is automatically convergent. If this one is divergent, and this one turn to be divergent. Convergent means limit n tends to infinity Sn, we get finite number. So taking limit n tends to infinity Sn, limit n tends to infinity 2 minus 1 by 2. By applying m limit, this value is going to be 0, we get 2. This one as finite number, as summation un and sequence Sn behave alike. Here sequence Sn is convergent. You can see this implies series summation un is convergent. Now second question is, here the given series is summation un, this is equal to 1 by 2 plus 1 by 2 into 3 plus 3 into 4 up to 6. Now firstly we have to find the nth term. Here you can say here u1 is
1 into 1 by 2. u2 is 1 by 2 into. That means if I write 1 here, we get 1 and one additional term. 1 plus 1 is 2. If I write u2, that means second term. 2, here we get 2. Here we are getting 3. That means 3. Similarly, if I write u3, here is 3 and 1 and adding 1 on this term, we get 4. तो इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, un होगा, एक आएगा 1 बाय n, एक नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, एक प्लस से हो जाएगा. तो क्या आ गया 1 बाय n इंटू एन प्लस 1. तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं. तो un हमारे पास क्या आ गया 1 बाय n इंटू एन प्लस 1. ठीक है. अब जब भी क्या होगा प्रोडक्ट में आएगा, इस टाइप में प्रोडक्ट में, तो देखो यहाँ से तो हम कोई कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि दिस इज जीपी और एपी और एनी टर्म. तो इस टाइप में क्या करना, वी हैव टू मेक पार्शियल फ्रैक्शन. तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करना, इस तरह लिख लेना. ये तभी एप्लीकेबल है, ये शॉर्टकट मेथड, जबकि ये क्या होंगे, दिस आर गोइंग टू बी लीनियर फैक्टर. अब क्या करना है, आपने इस एन को ज़ीरो करना है. अब एन को जब ज़ीरो करेंगे तो इसमें छोड़ के बाकी सभी में वैल्यू सब्सिट्यूट कर देनी. एन ज़ीरो किया तो यहाँ जब हम सब्सिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, इसको छोड़ के जहाँ से वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे 1, ऊपर तो 1 ही है. अब क्या करना है, n प्लस 1 को ज़ीरो किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1. तो यहाँ हमने -1 लिख दिया, जहाँ पे n है ऊपर 1 आ गया. ठीक है. तो यहाँ प्लस आ गया. तो वी कैन राइट 1n माइनस 1 बाय n प्लस 1. तो ये आ गया हमारे पास. तो अब हमें क्या करना, इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करनी है या डाइवर्जेंस. तो इसके लिए हमको पार्शियल सम निकालना पड़ेगा. पार्शियल सम का मतलब क्या है, हमको एस एन सीक्वेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो S1 क्या होगा, S1 इज U1. तो U1 क्या होगा हमारे पास, देखो n की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी. तो यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी 1 बाय 1. यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाय 2. यहाँ क्या करना पड़ेगा, S2 क्या होगा U1 प्लस U2. तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सॉरी इस केस में हम क्या करेंगे, इससे कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, एस एन हमको ये पता है, एस एन क्या होता है U1 प्लस U2 अप टू सोन U1. तो हम क्या करते हैं, पहले U1 निकाल लेते हैं. U1 क्या बनेगा, n की वैल्यू यहाँ करेंगे 1. तो क्या आ गया 1 बाय 1. यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाय 2. U2 निकालेंगे, U2 क्या आ जाएगा 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3. यहाँ पे सब्सिट्यूट कर रहे हैं n की वैल्यू. U3 क्या आ जाएगा 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4. इसी तरह करते जाएं तो un माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे n माइनस 1 करेंगे तो 1 बाय n माइनस 1. यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 1 करेंगे तो सिंपली n. un हमको पता ही है क्या है, 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1. अब क्या किया हमने, Sn हमको पता है, Sn क्या होता है U1 प्लस U2 अप टू सोन U1. अब क्या करना है, अगर Sn निकालना है तो इनको सम करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, एडिंग वर्टिकली वी गेट. हमने वर्टिकली ऐड कर दिया. तो देखो जब ऐड करेंगे ये टर्म और ये टर्म सेम है, डिफरेंट साइन. तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल होगी. उसी तरह ये क्या होगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. अगर आप UN माइनस 2 निकालोगे, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास बच क्या गई, ओनली 2 रिमेनिंग टर्म्स. एक तो 1 आ गया, एक क्या आ गया 1 बाय n प्लस 1. तो हमारे पास S1 क्या है, Sn क्या था U1 प्लस U2 अप टू सोन U1. तो ये n क्या आ गया हमारे पास, ये जो ऐड किया हमने वर्टिकली, तो क्या आ गया 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1. तो देखो हमें को क्या चेक करना, सीरीज़ का बारे में चेक करना. सीरीज़ तभी कन्वर्जेंट होगी जब ये जो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा. अब देखो कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट लेनी पड़ेगी. तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ Sn पे, तो क्या आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और क्या आ गया 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1. तो लिमिट ले लो, ये क्या आ जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0. तो क्या आ गया 1, ये क्या आ गया फाइनाइट आ गया.
तो इसका मतलब क्या है, Sn इज कन्वर्जेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो इसका मतलब है एज समेशन un एंड सीक्वेंस Sn बिहेव अलाइक, दैट मीन सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब क्या है, जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, इज कन्वर्जेंट। अगेन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है, ये सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। नॉन नेगेटिव टर्म्स मतलब वो सीरीज जिसमें सारी टर्म्स क्या हो, पॉजिटिव हो, हैज ओनली टू ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, या ये कन्वर्ज कर हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, सेकंड ऑप्शन क्या है, डाइवर्ज। लेकिन ये कभी भी ऑक्सीलेटिंग नहीं होगी, कोई भी सीरीज जो नॉन नेगेटिव टर्म्स के साथ। नॉन नेगेटिव टर्म्स मीन्स दैट मीन u1 भी पॉजिटिव हो, u2 भी पॉजिटिव हो, u3 भी पॉजिटिव, वो सीरीज क्या करेगी, या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ठीक है। लेकिन कभी भी क्या है, ऑक्सीलेटिंग नहीं होगी। इन नो केस इट कैन बी ऑक्सीलेटिंग। ये सिर्फ पॉजिटिव टर्म के बारे में है। अगर u1 नेगेटिव हो जाए या u2 नेगेटिव हो जाए तो उसके लिए अलग मेथड है।